Okay, so what we are going to do in this chapter is, so there are two things, relation and functions. So in class 11th, we have done what is a relation, what is a function, that we have already done. Now in class 12th, we are going to learn the types of relations and types of functions. So starting with, we will only discuss in today's class what is a relation, what are the types of relations. Then there's something called equivalence class related to equivalence relation. So these are the topics that we are going to do. So you can have this as mind map, that first what is a relation, then we will come to types of relations. So there are two categories. The first one is this, where we have universal relation, empty relation, and identity relation. We are going to see what are these relations. Then there is another category which is the most important one, which is reflexive relation, symmetric relation, and transitive relation. This we have already done. We are going to revise. And then if a relation is all three of these, then it is called as an equivalence relation. There is a term related to it which is called equivalence class, and this is also what we are going to see in today's class. Fine. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Yes, so ma'am. starting with, let's revise what is a relation first. So in class 11th, we did what is a relation. So anybody remembers what is a relation? कोई भी बताना चाहता है what is a relation? You can raise your hand and tell me anything that you remember. You need not give me a perfect definition, जस्ट द बेसिक. देखो मैथ्स में ना ये है कि आप लोगों को डेफिनेशन तो बाद में अपने आप याद हो जाएंगी, बस आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. तो रिलेशन का क्या मतलब है बस वो समझा दो, डेफिनेशन मैं आपको बता दूंगी एग्जैक्ट. एनीबडी हु वांट्स टू ट्राई, व्हाट इज अ रिलेशन? Yes, you can raise your hand. Yes, Pruha. One connection between a set of values ordered pairs. Okay, connection between set of values or ordered pairs. Okay, तो जब भी हम लोग बात करते हैं कनेक्शन, कनेक्शन वर्ड ठीक है रिलेशन के लिए, क्योंकि रिलेशन हमेशा दो चीज़ों के बीच में ही होगा, राइट? सो वेन एवर वी टॉक अबाउट रिलेशन, वी ऑलवेज फर्स्ट टॉक अबाउट टू सेट्स, राइट? बिकॉज जो भी हम एलिमेंट्स बात करते हैं अपने relation के लिए, they always come from a set. You know, whatever we pick up, we always pick up from the sets. So whenever you define a relation, you first must have two sets जिनके elements को हम relate करने वाले हैं. So let's say these are the two elements of this set, and these are the two elements of this set. Now you said the connection between the two elements or the ordered pair. तो अगर मैं इस सेट के एलिमेंट्स इधर मैप कर दूं, so 1 is mapped to 3, 1 is mapped to 4, 2 is mapped to 3, 2 is mapped to 4. So if all the elements of A are related to all the elements of B, that used to be our Cartesian product. याद है कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता था? कि सारे एलिमेंट्स जो सेट ए में हैं वो रिलेटेड है सारे एलिमेंट्स ऑफ सेट बी से. सो दैट यूज्ड टू बी आवर कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाते हैं फ्रॉम सेट ए टू बी, right? Whatever ordered pairs you can think of from set A to set B, all will be there in your Cartesian product. So relation हम define करते थे इसी का subset. तो relation basically एक simple connection है, simple mapping है, simple वन टू वन या कनेक्शन है जो आप बोल रहे हो फ्रॉम वन सेट टू द अदर सेट. नाउ बट रिलेशन में ज़रूरी नहीं है कि सारे ही एलिमेंट्स रिलेटेड हो. रिलेशन में कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं. दैट इज़ वाई वी यूज टू से दैट रिलेशन इज़ अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट. दैट यूज टू बी द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ रिलेशन. क्या होता है रिलेशन? इट इज़ अ
Subset of the Subset, Cartesian product. right, subset of the Cartesian product. Now the Cartesian product may be from the first set to the second set depending on आपने कौन सा first set लिया है. So let's say if the first set is 1A and the second set is B, so it is a subset of the Cartesian product. Subset मतलब जो भी एक set है उसका या तो कुछ पोर्शन हम ले लेंगे, या अगर ये मेरे पास पूरा सेट है यूनिवर्सल सेट, इसमें से ये हो सकता है हमारे पास एज आर सबसेट, और दिस होल कैन आल्सो बी अ सबसेट. एज यू नो, every set is a subset of itself, or it can be even this, कुछ भी हो सकता है. तो सबसेट में जरूरी नहीं होता कि all the elements should be related. We can have just one part or portion of the bigger set. So that used to be our relation, right? Then we had something called domain of a relation. Anybody remembers what is a domain of a relation? Yes, Nishta? Set of all inputs. Set of all inputs. Set of all inputs, right? Good. So यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें डोमेन, तो सेट ऑफ ऑल इनपुट्स का मतलब होगा, जैसे अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था, if we had these two sets A and B, so input here will be, you see the mapping, I have mapped 1 to 3 and 4 and 2 to only 3. So here the set of all inputs, because इनपुट्स हमेशा फर्स्ट सेट से आते हैं, तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से यहाँ पर मैप्ड हैं, या कौन कौन से इनपुट्स बन रहे हैं, कौन कौन से एक्स एलिमेंट्स हैं. तो द सेट उनका हमारे पास होता था डोमेन. सो हियर द डोमेन सेट इज गोइंग टू बी द सेट ऑफ 1 and 2, right? Then there used to be something called range. What is range? What is range? Yes, Sanskriti? Ma'am, the set of all outputs. Right, the set of all outputs, the set of all y elements, or the set of all the elements which are mapped in second set. ये तीनों definitions हमने सीखी थी relations में. So correct. यहाँ पर सिर्फ mapped कौन कौन से हैं? So here 3 is also mapped, 4 is also mapped. So the range set is going to be 3 and 4. So your domain is 1, 2, जो यहाँ पर mapped थे. Range set is जो भी second set में mapped थे. And there used to be one more term, लिख लेते हैं, although we do not need it as such, codomain. What is codomain? The whole set B, जो second set होता है, उसको हम बोलते हैं codomain. So here your codomain is going to be this, right? इसी में एक और चीज देख लेते हैं. अगर मैं यहाँ पर एक element और लिख देती 5, which is not mapped to any element, so will there be any change in the domain set? Will there be any change in the domain set? No? No, because it is not mapped, it will not be an input element. So there will be no change in the domain set, right? Also, will there be any change in the range set? No, ma'am. No change, because 5 is the element of first set, and whenever we talk about the range set, it must be in the second set, right? Yes, anybody is asking anything? No, ma'am. Okay. So that used to be your basic relations जो अभी हमने class 11th में पढ़ा था. एक question करके देख लेते हैं so that all of you will recall it. क्या कैसे निकालते थे domain, range and codomain. Let's say, take this example. You have a set A which has element 1 to 14 and the relation is defined to be x is related to y if 3x minus y is equals to 0. So you have to write the domain, range and codomain for this relation. लिखो. All of you do it yourself. Find out the domain, range and codomain. देखो, जो हम क्लास में करते हैं, कभी भी ऐसा मत सोचना कि मुझे क्लास में समझ नहीं आ रहा है तो मैं इसको अपने आप पढ़ लूँगी बाद में. वो तो आप पढ़ ही लोगे, मैं आपको ज़रूर उसके रेफरेंस चीज़ें दूंगी जहाँ से आप पढ़ लोगे. बट क्लास में जो भी मैं करा रही हूँ, मैं हमेशा रिवाइज करवा कर करवाती हूँ. तो अगर आपको कहीं पर भी डाउट आए या कुछ भी लगे कि नहीं क्लियर है, उसी टाइम क्लियर करना, तभी आपको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा और आप अच्छे से अपने आप कर पाओगे.
ठीक है, ये सारी चीजें जो मैं अभी करा रही हूँ रिवाइज, ये पूरा डिटेल में आपको वीडियो में मिलेगा विद 4-5 एग्जाम्पल्स। वो जरूर आप करोगे अपनी प्रैक्टिस के लिए, आपको और अच्छे से आएगा, बट क्लास में आना भी जरूरी है। तो इसीलिए अभी जैसे मैंने ये एग्जाम्पल दिया है, हर कोई ट्राई करेगा, अपने आप करने की कोशिश करो, गलत होगा तो आपको पता चलेगा क्या मिस्टेक थी। यस, आई वॉन्ट एवरीबडी टू पार्टिसिपेट। इस बार तो मार्क्स भी लगेंगे, तो पार्टिसिपेशन के मार्क्स हैं, तो प्लीज देख लेना। यस, एनीबडी वांट्स टू ट्राई? यस अनुवंशिका, बताओ, डोमेन बताओ बस। Ma'am, set A. सेट ए विल बी द डोमेन। ओके, Yes, ma'am. चलो, तो डोमेन लिखने के लिए पहले हम रिलेशन भी लिख लेते हैं। व्हाट ऑल एलिमेंट्स आर रिलेटेड। अना, रिलेशन के एलिमेंट्स आप बता सकते हो, विच ऑल एलिमेंट्स आर रिलेटेड? Yes, ma'am. 1, Yes. 2, 6, 3, 9, and 4, 12. 4, 12. Okay, good. So these will be the elements which will be related. Relation में हमेशा ordered pairs आते हैं, क्योंकि relation की बात हो रही है, 2 elements होने ही चाहिए। Now how we have found out, मैं एक करके दिखा देती हूँ, बाकी follow करेंगे। क्योंकि सारे इनपुट्स होते हैं x और आउटपुट्स होते हैं y, तो हम x की वैल्यू रखेंगे और देख लेंगे y क्या होना चाहिए, so that this equation is satisfied. So if we put x is equals to 1, we must remember, क्योंकि लिखा भी हुआ है, एक्स वाई शुड कम फ्रॉम द सेट ए, तो इनपुट तो हमेशा जरूर ए में से ही आएगा, बट यहाँ पर बता दिया है आउटपुट इज ऑल्सो फ्रॉम सेट ए, सो वी कैन नॉट एक्सीड 14। सो पहले जब x इज इक्वल्स टू 1 रखा हमने यहाँ पर, सो इट बिकम्स 3 into 1 3 minus y is equals to 0, so y की वैल्यू बन गई 3, so that is 1 is related to 3, इसलिए हमने लिखा 1 3। So 3 minus 3 is equals to 0. So first element हमारे पास आ गया 1 3. Then you will substitute x as 2. So it should be 6 to make it 0. So 2 6 3 9 4 12. Now when you put x is equals to 5, which we can put here. So when x is 5, 3 into 5 becomes 15. But 15 minus 15 will make it 0. But ये हम नहीं ले सकते हैं, because we do not have 15 as in our set A. So you must always check where your elements are coming from. It always come from the set, and since here input output both are coming from your first set, तो आपको ये देखना था कि it should not exceed 14, तो यहाँ पर ये exceed नहीं कर रहा है। ओके, सबसे पहले हमने रिलेशन के एलिमेंट्स ही लिख लिए। Now we can easily answer what is our domain, range and codomain. So like Anuvanshika said, the domain Yes, is going to be the whole set A, right? यही कहा था अनुवंशिका? yes, ma'am. वो गलत हो गया था, ma'am. Yes. गलत हो गया, right? Yes. So the domain is going to be what? 1, 2, 3, 4. 1 2 3 and 4. Only the inputs will become your domain set के elements, और the x element, first element in the ordered pair, वही उसी का set हमारे पास domain होगा, right? Okay, who wants to answer for range? Anybody for range? Raise your hand. Yes, Mansi? It will be 3, 6, 9 and 12. 3 6 9 and 12, right? All the outputs or all the mapped elements in the second set, or all the second elements of the ordered pair, उनका set जो होता है, that is our range. तो ये हमारे पास range हो गया, and codomain is going to be codomain. Anybody? Yes, Drishti? Ma'am, set A. Codomain is going to be set A, because mapping is defined from A to A, right? So this will be your codomain. So I hope अब थोड़ा सा याद आ गया है सबको, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन कैसे वर्कआउट करते थे, बिकॉज यू माइट नीड इट इन सम क्वेश्चंस, ऑल्दो हर क्वेश्चन में ये रिक्वायर्ड नहीं होगा, बट हमें चाहिए होगा, क्योंकि हम अब पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो हमने देख लिया व्हाट इज अ रिलेशन, व्हाट इज डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। क्लियर? सो दिस वी ऑलरेडी न्यू फ्रॉम क्लास 11th। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। So today we are going to study types of relations में सबसे पहले 3 types of relations,
which we have not seen in class 11. So one is called universal relation, one is called empty relation, and one is called, ठीक है, ये तीन रिलेशन हम समझ नहीं है, बट जस्ट बेसिक पता होना चाहिए कि क्या होता है. सो स्टार्टिंग विद यूनिवर्सल रिलेशन. सो लेट्स से अगर आपके पास एक सेट है ए, लेट ए बी एनी सेट, ठीक है, ए टू ए ही आपके पास, हमारे पास ए सेट है और रिलेशन जो हमारा डिफाइंड है वो ए टू ए डिफाइंड है. देन वी से अ रिलेशन इज अ यूनिवर्सल रिलेशन if every element of A is related to every element of the other second set. That is, if each element of the first set is related to every element of the second set, then it is called as an universal relation. Right? तो अगर A एक set था, let A be any set, and you have a relation defined from A to A, then what we are saying, if each element of A is related to every element of A, then that is going to be a universal relation. तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ बहुत इजी सा, जिससे आप समझ जाओगे. लेट्स से A सेट है ऑफ ऑल द गर्ल्स इन मार्टडे स्कूल इन क्लास, लेट्स से 12A. ठीक है, सो मैंने A सेट ले लिया सारे गर्ल्स का मार्टडे स्कूल से 12A में. अब अगर मैं यहाँ पर रिलेशन डिफाइन कर दूं that A is related to B, that means one element is related to another element or one girl is related to another girl if A is in the same class as of B, then will it be a universal relation or not? Yes, ma'am. हो जाएगा, क्योंकि सेट क्या है, सेट है मार्टडे स्कूल में जो भी 12वीं में गर्ल्स हैं, तो ए और बी दोनों ही हमारे पास इस सेट से आ रहे हैं, ए सेट से आ रहे हैं. अब आप अगर देखोगे कोई भी एक लड़की उठाओ, लेट्स से आपने अरुणिमा पाल को अगर पिक किया, सो शी इज इन 12A. नाउ इफ आई टेक एनी अदर गर्ल फ्रॉम द सेम क्लास, सो ऑब्वियसली वो दोनों तो आपस में रिलेटेड ही होने वाले हैं ना. So every element of the first set is related to the element of the second set, which in this case is the same set A. So this kind of relation is called a universal relation. Is it clear to everybody? If each element of A is related to every element of A, then that is your universal relation. Okay, then we have something called empty relation. So empty relation जैसे कुछ समझ आ रहा होगा, कोई बता सकता है क्या हो सकता है एम्प्टी रिलेशन? इसमें नाम से ही पता चल रहा है एम्प्टी रिलेशन. Ma'am, when none of the elements qualify for the relation. Good. The set. So, right. So let A be any set and you have a relation defined from A to A. Then we say it is an empty relation. Empty मतलब खाली होना चाहिए. तो खाली तो तभी होगा ना relation. Relation will be a set. So it is going to be an empty relation or phi only if no element of A is related to any element of A. मतलब कुछ भी कर लें, कोई भी एलिमेंट इसके एलिमेंट से रिलेटेड होगा ही नहीं. तो जब रिलेटेड ही नहीं होगा तो ये रिलेशन कैसा हो जाएगा? एम्प्टी रिलेशन. सो अगर कोई एग्जाम्पल लेना है तो हम लोग लेते हैं, लेट्स से अगेन ए हमने ले लिया, ऑल द गर्ल्स इन मार्टडे स्कूल, ठीक है, एंड लेट्स से मैं रिलेशन डिफाइन कर रही हूँ, A is related to B if A is brother of B. बताओ क्या ऐसा कोई हो सकता है that A is brother of B? आप में से कोई ऐसा है, किसी का भाई है कोई है? No, ma'am. नहीं हो सकता. No, ma'am. क्यों नहीं हो सकता? Because we have a girls school, तो A cannot be brother of B. So कुछ भी कर लें हमारे पास ये आ ही नहीं सकता है. So A is not a brother of B. So this will always come out to be an empty relation. Fine.
Yes, ma'am. Then we have Yes, ma'am. some right. Then we have something called identity relation. तो identity relation क्या होता है? It is somewhat similar to reflexive relation, but मैं आपको लिखती हूँ definition, आप मुझे बताना कैसे थोड़ा सा different है. Let's say let A be a set and we say कि एक हमारे पास relation R from A to A will be an identity relation if every element of A is related to itself. मतलब A belongs to R for all A belongs to A. Every element of A is related to itself only. Only word is also here. So this is your identity relation. Identity relation क्या होता है कि एक एलिमेंट को खुद से ही रिलेटेड होना चाहिए, सिर्फ ऐसे ही एलिमेंट इस रिलेशन में आने चाहिए, then it will be an identity relation. Let me give you an example. Let's say A is a set 1 2 3 and मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया 1 1 2 2 3 3. Okay, and there is another relation, let's say 1 1 2 2 3 3 1 3. ओके, बताओ क्या ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है? फर्स्ट आर, व्हाट डू यू थिंक, इज दिस एन आइडेंटिटी रिलेशन? It is an identity relation. Yes, Because ma'am. right, because the condition was element A should be related to itself. So if we see 1 is related to 1 A set में है, 2 is related to 2 इस set में है, 3 is related to 3 इस set में है. So this is going to be an identity relation, क्योंकि एक element को खुद से ही related होना चाहिए था और सिर्फ ऐसी ही चीज आनी चाहिए थी, तो ये हमारे पास है identity relation. But if we see R2 1 1 2 2 3 3 तो है, but 1 3 भी है. So will this be an identity relation? What do you think? No, ma'am. No, ma'am. It will not be an identity relation because उधर हमारे पास एक word आ जाता है only. So if you are given a relation like this, this is going to be a reflexive relation, जो कि अभी हम revise करेंगे. But for a relation to be identity relation, element should be related to itself only for all the elements of the set. So these are the three types of relations जो आपको पहले mind में रखने हैं: universal relation, empty relation and identity relation. Clear? जहां से मैं Yes, आपको रिवाइज करने के लिए बोलूंगी, I have taken 2-3 more examples for each of these, so आप वहां से रिवाइज कर सकते हो. बट अभी के लिए हमें सिर्फ इतना ही थोड़ा सा समझना था यूनिवर्सल, एम्प्टी एंड आइडेंटिटी रिलेशन में. नाउ वी आर गोइंग टू सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें पढ़ना है, दैट इज व्हाट, क्या होता था? Equivalence relation, Reflexive, symmetric, right. transitive. Reflexive, symmetric and transitive relation. So let's begin with this. ये यहाँ से आपका main chapter start होता है. Definitely you can expect one question from this. You can either get 1 marker, 2 marker, even a 3 mark question from this particular topic. मैं आपको class 11 से बोल रही हूँ, बहुत important topic है, तो ये 1, 2 और 3 तीनों मार्क में आपको पूछा जा सकता है. So let's revise this once again. जिनको क्लास 11th में थोड़ी डेफिनेशन प्रॉब्लम थी, मैं फिर से एक बार रिवाइज करा रही हूँ. So एक रिलेशन ऑन अ सेट A is called reflexive relation. हम reflexive उसको तब बोलते थे when an element is related to itself. A belongs to R and this should be true for all A belongs to A, for all the elements coming from the set A. This condition in reflexive was important, that एक element को खुद से related होना चाहिए, खुद से ही देखना है उसका relation, and it should be true for all the elements of the set. That used to be a reflexive relation. Then symmetric में क्या होता था? अगर, if is important here, if AB belongs to R, तब हम उसका उल्टा check करते थे whether BA belongs to R or not. तो सिमेट्रिक में हम हमेशा स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लुकिंग एट इफ A is related to B. If A is related to B, then we will check उसका उल्टा है या नहीं. अगर A ही B से रिलेटेड नहीं है तो उल्टा चेक नहीं करना. देन थर्ड, ट्रांजिटिव रिलेशन. इसमें हम क्या करते थे, 3 चाहिए होते थे.
if A is related to B and B is related to C, then हम check करते थे whether A is related to C or not. अगर ऐसा होता था तो ट्रांजिटिव होता था. बट देयर इज अनदर कंडीशन ऑल्सो फॉर ट्रांजिटिविटी. अगर ए बी है बट यू आर नॉट एबल टू फाइंड बी सी, दैट इज बी इज नॉट रिलेटेड टू सी, still it will be a transitive relation. इसको हम बोलते हैं trivially transitive. Either you'll say it will be trivially transitive or it will be a transitive relation. Confuse मत होना, trivially transitive का मतलब वो transitive है. So these were the three definitions that we had for types of relation: reflexive, symmetric and transitive. अगर एक relation ये तीनों होता है, तीनों satisfy करता है, उसको हम बोलते हैं equivalence relation. Please go through these definitions once again. If you have any doubt, ask me right now. अभी पूछ लो. एक बार go through कर लो. I'm giving you 2 minutes. Any doubts? No, ma'am. No doubts. ओके तो जो हमने क्लास 11th में किया था वही हम अभी एक दो एग्जांपल्स देखेंगे, रिवाइज करेंगे कि कैसे चेक करते थे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. तो यहाँ पर आपके पास दो टाइप्स थे. एक तो होता है जहाँ पर आपको सेट दे देते हैं और रिलेशन में एलिमेंट्स दे देते हैं. वन टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दैट, उसमें आपको बोला जाता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव चेक करो. Then there is another type of question where statement is given and you have to write your answer in step. Now the most mistake that you people make is in that writing part. तो वो मैं जैसे बताऊंगी एग्जैक्टली वैसे ही मुझे आपका एग्जाम में चाहिए, अदरवाइज मैं मार्क्स कट करूंगी क्योंकि फिर बोर्ड्स में जाकर मार्क्स कट होते हैं. तो हम पहले फर्स्ट टाइप ये देखते हैं. लेट्स से A is the set 1 2 3 and relation मैंने डिफाइन किया 2 2. So I'm asking you whether it will be a reflexive, symmetric, transitive relation or not. तो आप अपने आप वर्कआउट करो, लिखो and then we'll see. इसको देखो, आपके अकॉर्डिंग will it be reflexive, symmetric, transitive or not, and then we will discuss. Okay, let's discuss. What do you think? Will it be a reflexive relation? Raise your hands and you can answer. Yes, Meghna. Will it be reflexive? Yes, ma'am, it is reflexive. It is reflexive? Yes, ma'am. Okay, okay. Anybody else? और कोई आंसर करना चाहता है? Will it be a reflexive relation? Yes, Kanishka? Ma'am, it is not reflexive, ma'am, as 1 1 and 3 3 are not the part of relation. Very good. तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन बार बार रिकॉल करनी है. रिफ्लेक्सिव क्या होता था? एन एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, जो कि दिख रहा है 2 इज रिलेटेड टू 2, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन देयर वाज फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट इट शुड बी ट्रू. तो सेट में तो 1 और 3 भी है,
We do not have 1 1 and 3 3 in the relation, so it cannot be a reflexive relation. अगर 1 1 3 3 भी होता तो this would have been a reflexive relation. So you will say that this is not a reflexive relation as 1 1 does not belongs to R. You can either write 1 1 does not belongs to R or 3 3 does not belongs to R. या दोनों भी लिख सकते हो, but एक तो mention कर दोगे, so it will not be reflexive, right? So it is not a reflexive relation. Clear? Clear, everybody? Yes, ma'am. Okay, Yes, symmetric. Look for symmetric. Raise your hand. Any answers for symmetric? What do you think? Is this a symmetric relation? Symmetric की definition क्या है? If A B belongs to R, then उसका उल्टा देखेंगे. Yes, Agnes? Ma'am, it is not symmetric because, ma'am, in the set there's no 1, 2 and 2, 1. That is A, B and B, A. Okay. Yes, Kanika. Let's take another. Yes, Kanika. It's not. It's not. It is not symmetric. Okay. Anybody else? Anybody else wants to try? Any hands are raised? I cannot see. I can only see Kanika's hand. Anybody else wants to try? Will this be a symmetric relation? What do you think? Symmetric में क्या होता था? If A B related है, then BA देखना है. Yes, Nishta. Ma'am, it is symmetric, ma'am, because if ma'am 2, 2 belongs to R and ma'am 2, 2 also belongs to R. Ma'am A, B and B, A belongs to R. Right. Again देखो definition नहीं भूलना है. Symmetric में क्या important है? If is important. अगर A B related है, उसी का उल्टा चेक करना है. तो आपने बोला ये सिमेट्रिक नहीं है. सो अगर मैं देखूं रिलेशन में तो सिर्फ 2 2 है ना. सो 2 इज रिलेटेड टू 2, तो उसका उल्टा क्या होगा? 2 2 ही होगा, विच इज रिलेटेड. सो एलिमेंट इज रिलेटेड टू अनदर एलिमेंट, उसका उल्टा रिलेटेड है. नाउ व्हाट एक्सप्लेनेशन यू गेव मी वाज 1 2 नहीं है. सो व्हाट डिड आई से? If 1 2 is not there, you do not have to check for 2 1, क्योंकि 1 2 ही नहीं है तो 2 1 नहीं चेक करना. सिर्फ जो रिलेटेड होते हैं उसी का उल्टा देखना होता है. तो ओनली दीज एलिमेंट्स वर रिलेटेड और उसका उल्टा भी इस रिलेशन में है. सो दैट इज व्हाई इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन. So in symmetric condition, if condition is very important. For reflexive, for all the elements of the set is very important. Is it clear? अभी डाउट क्लियर है कनिका एंड एग्नेस? ओके. Yes, ma'am. Okay. So for symmetric relation, what do we have is symmetric की definition होती है that if A is related to B, अगर A B से related है तो आप उसका उल्टा चेक करोगे whether B is related to A or not. Now coming to this example, इसमें related कौन से element है? 2 is related to 2. So मेरे पास आ रहा है यहाँ पर 2 2 belongs to R. मैं उसका उल्टा देखूंगी तो क्या होगा? 2 2 ही होगा, which does belongs to R. तो A is related to B, तो B is related to A भी हो रहा है, where A and B are both the same elements. Related है ना? अगर आप देखोगे सेट से एलिमेंट पिक करके तो 1 2 मैं नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि 1 2 तो रिलेटेड ही नहीं है, रिलेशन के अंदर ही नहीं है, तो उसका उल्टा भी नहीं चेक करना है. जो रिलेटेड होते हैं उसी का उल्टा चेक करना होता है इन सिमेट्रिक कंडीशन. Okay, now do it for transitive. What do you think? Is it a transitive relation? मैं आपको definition दिखा देती हूँ. Read the definition carefully and then answer. Is it a transitive relation? What do you think? Is it a transitive relation? Yes, who wants to answer? Raise your hand.
If you want to see the definition, here is the definition. If AB belongs to R, BC belongs to R, then AC you will check. Or if AB is there and BC is not there, then it will be trivially transitive. दोनों ही cases में ये transitive हो जाएगा. So you can answer. I want more people to participate. Try करो, गलत होगा कोई बात नहीं. Yes, Nila? How much trivially transitive? It is trivially transitive, right? So this relation is trivially transitive. As you can see, A B है, A is also 2, B is also 2. So A B है, but B C नहीं है. B is not related to any element C further. कुछ नहीं दिख रहा है. So it is going to be trivially transitive, right? So this is a transitive relation. Clear to everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ आ गया है. अब एक और सिमिलर क्वेश्चन दूंगी, वो आप करेक्ट करना है सबको. चलो, do this. A set is given to be 1 2 3 and relation is 1 2 2 3. 1 is related to 2, 2 is related to 3. Try reflexive symmetric transitive. Yes, raise your hands for reflexive. Anybody who wants to answer for reflexive? Others, please try. और कोई बच्चा try करो. Yes, Anuvanshika. No, ma'am, it is not reflexive. It is not reflexive. Why? Ma'am, because it says that the relation is 1 2 and 2 3. So, ma'am, 1 is not related to itself. Like it should be 1 and 1 or 2, but it's Right. not. 1 and 1 or 2 or 2 नहीं. 1 and 1 and 2 and 2 and 3 and 3, right? Yes, So, yes. right. So if when you say it that it is not reflexive, you can just write one example. जब भी बोला जाता है कि ये नहीं है, वो क्यों नहीं है, उसका एक example जरूर आना चाहिए. नहीं दोगे तो marks कटेंगे. So 1 1 does not belongs to R, which is correct as you said. कोई भी एक example दे देंगे इसमें से that 1 1 does not belongs to R. So it is not reflexive. Correct. Symmetric. Anybody who wants? Yes. डाउट था मुझे. Right. मैम पूछो. इसमें पर लास्ट मैम आइडेंटिटी वाला जो था ना मैम, तो उसमें हाँ. भी तो ऐसा सेम है. उसमें मैम ने आपने बोला था कि 1 2 तो रिलेटेड है इसलिए वो रिफ्लेक्सिव होगा, पर यहाँ पर मैम ओके, मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने आइडेंटिटी में क्या बोला था. देखो, आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए और सिर्फ उस सेट में ऐसे ही एलिमेंट्स आने चाहिए. दैट एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए. सो दिस इज एन आइडेंटिटी रिलेशन. बट ये एक आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 1 3 भी आ रहा है. तो आइडेंटिटी रिलेशन वो होता है जिसमें एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होगा एंड ओनली सच एलिमेंट्स आर पार्ट ऑफ दैट सेट. बट यहाँ पर 1 3 भी आ गया. सो दिस turns out to be a reflexive relation. ये reflexive बन जाएगा क्योंकि an element is related to itself for all the elements of the set. And there is some more elements added to the set which will make no problem for it to be reflexive. But identity होने के लिए सिर्फ ऐसे ही elements होने चाहिए. अब जो हम पढ़ रहे हैं, Andrea, अब जो हम पढ़ रहे हैं, we are only studying reflexive, symmetric and transitive. तो अब यहाँ पर जो आप कंडीशन देख रहे हो रिफ्लेक्सिविटी की देख रहे हो, आप आइडेंटिटी की नहीं पढ़ रहे हो. ठीक है. अब मैं जैसे अगर आपसे पूछूंगी इज दिस अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. 1 1 2 2 3 3 नहीं है. इफ आई आस्क यू इज दिस एन आइडेंटिटी रिलेशन, इट इज नॉट इवन एन आइडेंटिटी रिलेशन. ओके मैम. राइट.
Okay, so somebody was answering for symmetric. Yes, Lakshmi. Lakshmi, you want to answer for symmetric? Is this relation symmetric? Ma'am, it's not symmetric as 1 and 2 belong to R, but 2 and 1 does not belong to R. Very good. So you will pick up any one element which is related to the other element. So 1, 2 does belongs to R, but 2, 1 does not belongs to R. So it is not a symmetric relation. और let's say अगर यहाँ पर 2, 1 होता भी तब भी आप चेक करते 2, 3 के लिए, तो 2, 3 है बट अगर 3, 2 नहीं है, so it will not be symmetric. It should be true for all the elements which are related. तो अगर इस सेट में 2, 1 मिल जाता, still it would have not been symmetric क्योंकि 3, 2 नहीं मिल रहा है. Correct? Okay. Transitive. Anybody who wants to answer for transitivity? Yes, Pragalba. Is it transitive? No, ma'am, it is not transitive because 1, 2 and 2, 3 belong to R, but 1, 3 does not belong to R. Good. So, it is not So, right. So from the first condition, AB hai, BC bhi hai, but we are not getting AC. 1, 3 does not belongs to R, therefore it is not a transitive relation. So this is how you check for any relation to be reflexive, symmetric and transitive. इधर ही माइंड रखना, सिर्फ ये 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव. इनकी डेफिनेशन बार बार रिवाइज करो. तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जहां पर आपके पास सेट गिवन होता है, रिलेशन के एलिमेंट्स गिवन होते हैं, एंड देन दे आस्क यू वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव और नॉट. नाउ देयर इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो जो पूछा जाता है, दैट इज स्टेटमेंट क्वेश्चन, जो कि अब हम एक डिस्कस करेंगे. बट उससे पहले मैं जल्दी से आपको एक बार अभी दिखा देती हूँ कि आपने क्या क्या किया है, सो दैट यू डू नॉट गेट कंफ्यूज. सो हम लोगों ने अभी क्या रिवाइज किया है, हमने देख लिया व्हाट इज अ रिलेशन, देन हमने टाइप्स ऑफ रिलेशंस में देखा यूनिवर्सल, एम्प्टी एंड आइडेंटिटी. इनको एक साथ माइंड में रखो, एंड देन दीज 3, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. एंड अगर एक रिलेशन तीनों है, सो इक्विवेलेंस रिलेशन. अभी हमने इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है वो नहीं देखा है, वो जैसे ही मैं आपको एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कराऊंगी उसी के साथ मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लास. राइट, करें डिस्कस? यस ओके ओके. तो अब आप खुद लिखोगे इसके स्टेटमेंट्स एंड फिर चेक करना कि आपने एग्जैक्ट जैसे मैंने यहाँ पर लिखकर दिखाया है वैसे लिखा है या नहीं, क्योंकि अगर एक भी इम्प्लीकेशन यहाँ आपने इधर उधर लिखा है तो आप अपने मार्क्स अपने आप काट लेना, क्योंकि मैं आपको एग्जाम में नहीं दूंगी. ओके, द क्वेश्चन इज, लेट्स से यू हैव अ क्लासरूम एंड दीज आर द स्टूडेंट्स वेयरिंग दीज कलर्ड टी शर्ट्स. तो फर्स्ट रो में सारे पिंक कलर टी शर्ट वाले बच्चे बैठे हैं, सेकंड में ऑरेंज, थर्ड में ब्लू, ग्रीन, येलो एंड रेड. सो दिस इज अ क्लासरूम एंड ये जो कलर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये टी शर्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो बच्चों ने पहनी हुई है. ओके, ओनली दीज मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लासरूम. नाउ आई एम डिफाइनिंग अ रिलेशन टू बी x is related to y if x is wearing the same color t-shirt as y. So first you will have to check for whether this is reflexive, symmetric, transitive or not. करो, सारी स्टेटमेंट लिखकर करना जैसे आपने क्लास 11th में सीखा था, एग्जैक्टली वैसे ही ट्राई करो. रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. मैं आपको टाइम दे रही हूँ, 3-4 मिनट्स में हो जाएगा, तो आप लोग आराम से करो एंड देन वी विल सी द होल सॉल्यूशन.
So for reflexivity, check if an element, if a student is related to itself, X is related to X or not, and then symmetric के लिए, एंड मैंने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करते हैं तो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए हम अपने आप फर्स्ट कंडीशन लेकर चलते हैं, दैट इज फॉर सिमेट्रिक यू विल टेक लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, आप लेट करके चलोगे जो इफ वाली कंडीशन होती है, अदरवाइज फिर हम लोग तो हमेशा ही बोल देंगे कि सिमेट्रिक है ट्रांजिटिव है, इसीलिए हम हमेशा सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में जब भी हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करते हैं वी ऑलवेज फर्स्ट लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड देन यू चेक फॉर बी ए, and transitive के लिए you will let AB BC belongs to R and then you will check for AC. Done? Shall we discuss? Yes, ma'am. Okay. तो पहले बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है? Yes, ma'am. आ रहा है? Okay. Yes, So ma'am. it is all three. It is reflexive, ma'am. symmetric and transitive. So let me show you the steps जो आपको लिखने हैं. Okay. So first, for reflexivity, just a minute. Okay, for reflexivity, how will you start? You will first start with let, एक बच्चा उठाएंगे, let x belongs to our set C. C is our set. Now I have to check whether xx belongs to R or not. So here you will write as x is wearing the same color t-shirt as of x, है ना? x तो सेम ही कलर की टी शर्ट पहनेगा. लेट्स से अगर कोई भी बच्चा उठा लूं, G2 उठा लिया, तो जो उसने कलर की टी शर्ट पहनी है वो तो सेम ही कलर है जो उसने पहना हुआ है, ग्रीन. सो एज x इज वेयरिंग द सेम कलर टी शर्ट एज ऑफ x, दिस implies that xx belongs to R, मतलब x अपने आप से रिलेटेड है by using this relation. And this will be true for all the elements, all सारे बच्चों के लिए ट्रू होगा जो सेट सी से आ रहे हैं. Therefore it will be a reflexive relation. Now आप लोगों को लगता है ये तो बहुत ट्रिवियल सी चीज है ये बोलना कि x अपने सेम कलर की टी शर्ट पहन रहा है, बट अगर कोई ये स्टेटमेंट मिस कर रहा है, आप नहीं लिख रहे हो, तो मार्क्स नहीं दूंगी मैं, यहाँ पर मार्क्स कट जाएंगे. ठीक है, तो ध्यान से करना, एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन फर्स्ट. नाउ लेट्स सी सिमेट्रिक कैसे करेंगे. तो सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, मैंने आपको बताया सिमेट्रिक में क्या करते हैं, हम पहले लेकर चलते हैं कि दो रिलेटेड है. सो आप लोगे लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर. अगर x और y रिलेटेड हैं, सो बाय द डेफिनेशन of the relation क्या होगा, x is wearing the same color t-shirt as of y हो जाएगा. So this will imply that x is wearing the same color t-shirt as of y. ठीक है. Now
सिमेट्रिक में क्या करना होता है, उल्टा देखना होता है, तो अगर ये उल्टा इंप्लाई करेगा तभी हम लिख सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट स्टेप जो आएगा वो आएगा y इज वेयरिंग द सेम कलर टी शर्ट एज ऑफ x, क्योंकि अगर मैंने आपके जैसे कलर की टी शर्ट पहनी है तो आपने भी तो मेरे कलर के जैसी ही टी शर्ट पहनी है, तो उल्टा इंप्लाई कर रहा है। सो दिस इंप्लाइज दैट yx बिलोंग्स टू r एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स। जो भी हमारे पास सेट में एलिमेंट्स हैं और रिलेटेड हैं उसके लिए ट्रू हो जाएगा। सो द रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन, राइट? सबने लिखा है ऐसा? एग्जैक्ट सेम स्टेप्स? ओके, सो द रिलेशन इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। नाउ लेट्स सी फॉर ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, पहले दो अज्यूम करके चलेंगे, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड yz बिलोंग्स टू r। तीन हमें चाहिए होते हैं जो हम लेकर चलेंगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में हमेशा। सो दिस विल इंप्लाई व्हाट, x इज वेयरिंग द सेम, राइट, सेम कलर टी शर्ट एज ऑफ y and y is wearing the same color t-shirt as of z, t-shirt as of z, right? So this implies what, हमें चेक करना होता है ट्रांजिटिविटी में x और z फर्स्ट और लास्ट ट्रू है या नहीं। तो अब जब x ने y जैसी पहनी और y ने z जैसी पहनी है तो ये तो बताएगा कि x is wearing the same color t-shirt as of z. So this implies what, that xz belongs to R, and this is true for all the elements of the set. So this implies that the relation is transitive, right? हो गया transitive relation? यहां तक सबने किया है? Yes, ma'am. Okay, now see. Yes, ma'am. ये हमें पहले से करना आता था, हाउ टू चेक फॉर रिफ्लेक्सिविटी, symmetric and transitive. So if a relation is reflexive, symmetric and transitive, all three of them, अगर एक relation तीनों है तो ऐसा relation क्या होता है, this is called as an equivalence relation. तो ये हमारे पास एक equivalence relation है। अब इसी का एक बहुत छोटा सा पार्ट है which is something called equivalence class. क्या होता है, अगर जब भी एक रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तो वो क्या करेगा, उसमें हम हमेशा इक्विवेलेंस क्लासेस फाइंड कर सकते हैं। उसका क्या मतलब होता है, मैं आपको पहले एक एग्जांपल से समझाती हूँ फिर मैं आपको एक डेफिनेशन दूंगी। तो देखो ये हमारे पास सेट था, अब अगर मैं आपको बोलती हूँ राइट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ P1, तो उसका मतलब है यू हैव टू टेल मी ऑल द एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू P1। ठीक है, इसको बोला जाता है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ P1। P1 क्या है, ये इस सेट की बात कर रही हूँ, ये एलिमेंट की बात कर रही हूँ। तो इक्विवेलेंस क्लास हमेशा सिर्फ इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए निकाल सकते हैं हम, पहली चीज। और कैसे निकालते हैं, हमें सिर्फ ये देखना है कौन कौन से एलिमेंट उससे रिलेटेड है, वही सेट जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा इक्विवेलेंस क्लास का। सो इट इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू P1। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि कौन कौन से एलिमेंट्स रिलेटेड होंगे P1 से by this relation? Can anybody tell me? Ma'am, P2, P3, P4. And what about P1? Is P1 not related to P1? Yes, ma'am. P1 also. Right. So Yes, ma'am. it will be P1, P2, P3 and P4. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब मैं देख रही हूँ कि P1 से कौन कौन से रिलेटेड है तो रिलेशन है कि उन सबको सेम कलर की टी शर्ट पहनी होनी चाहिए। अब P1 पिंक टी शर्ट किन्होंने पहनी है, P1, P2, P3 and P4. So this is going to be equivalence class of P1. So equivalence class means the set of all the elements which are related to जिसके भी इक्विवेलेंस क्लास पूछी गई है। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B3, दिस इज हाउ यू राइट इक्विवेलेंस क्लास। ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल देते हो और फिर उनको बोला जाता है इक्विवेलेंस क्लास लिखो। और आइदर दे कैन आस्क यू राइट द एलिमेंट्स रिलेटेड टू B3 और दे विल से write the equivalence class of B3.
पूरा स्टेटमेंट में भी दे सकते हैं. सो कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B3? एनीबडी वांट्स टू ट्राई? रेज योर हैंड. Equivalence class of B3. Yes, Kanika? Ma'am, B1, B2, B3, B4. Right. So it will be the set B1, B2, B3 and B4. So this is your basic definition of equivalence class. Equivalence class क्या होती है? जब भी एक रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तो वो क्या करता है, हमारे सेट को ऐसे सेट्स में डिवाइड करेगा जिसमें हमारे पास ग्रुप्स बन जाते हैं. ग्रुप्स कैसे बनते हैं? जैसे यहाँ पर रिलेशन था कि सबको सेम कलर की टी शर्ट पहनी होनी चाहिए, वही एलिमेंट्स रिलेटेड होंगे. तो यहाँ पर देखो ग्रुप्स कैसे फॉर्म हुए. एक ग्रुप फॉर्म हो गया कि पिंक कलर की टी शर्ट, मतलब ये सारे एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड हैं. ऑरेंज वाले खुद सबसे आपस में रिलेटेड हैं. ब्लू वाले अपने आप से रिलेटेड हैं. ग्रीन वाले एंड येलो वाले. तो अब हुआ क्या है, जब भी मैं इक्विवेलेंस क्लास लिख रही हूँ तो मैं सिर्फ ये देख रही हूँ एलिमेंट कौन कौन से उससे रिलेटेड है, वो इक्विवेलेंस क्लास बन जाती है. एंड टॉकिंग अबाउट द फॉर्मल डेफिनेशन, इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है? इफ अ रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, like R is an equivalence relation, it will divide the whole set A, if this is the whole set A, into disjoint subset. हमारे पास कुछ सबसेट्स में वो उनको डिवाइड कर देगा, डिसजॉइंट होंगे वो आपस में, सच दैट जो पहले सेट के एलिमेंट्स होंगे वो सारे आपस में रिलेटेड होंगे, दूसरे वाले सारे आपस में रिलेटेड होंगे, तीसरे वाले सारे आपस में रिलेटेड होंगे. कोई भी दो एलिमेंट फ्रॉम द डिसजॉइंट सेट विल नॉट बी रिलेटेड टू द अदर सेट, क्योंकि आप देखोगे डिसजॉइंट सबसेट्स बन रहे हैं तो कोई भी A1 का एलिमेंट A2 से रिलेटेड नहीं होगा. तो जो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखा था टी शर्ट वाला, मेरे पास देखो डिसजॉइंट सबसेट्स क्या बने. दिस होल सेट वाज माय C, राइट? तो ये बन गया एक क्लास C1, ये C2, C3, C4, C5, C6. Now just see all the elements of C1, all the students who are wearing pink t-shirt, they are related to each other, right? P1 is related to P4, P1 is related to P3, P1 is related to P2, P1 is related to P1. So all the element of this set are related to each other, but no element from the first set is related to element of the second set. नहीं होगा क्योंकि इसने तो पिंक पहनी है, इसने ऑरेंज पहनी है टी शर्ट, राइट? So this is your basic knowledge of equivalence class, जो कि सिर्फ definition वगैरह कुछ याद करने की जरूरत नहीं है. माइंड में क्या रखना है, जब भी पूछा जाए किसी की equivalence class तो आप equivalence class का क्या मतलब निकालते हो? Elements which are related to that particular element. सिर्फ उतने देख लो और आपके पास equivalence class आ जाएगा. Am I clear to everybody? कुछ भी डाउट है किसी को? है कुछ डाउट? ओके, सो हमने देखा हाउ टू प्रूव रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन. इफ अ रिलेशन टर्न्स आउट टू बी ऑल थ्री, इट इज गोइंग टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन. और अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो एक एडिशनल क्वेश्चन उसमें आ सकता है, दे माइट आस्क यू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ सम एलिमेंट. तो जब भी इक्विवेलेंस क्लास पूछेंगे किसी एलिमेंट की, सो यू विल ओनली राइट द एलिमेंट्स, द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर एलिमेंट. ठीक है? तो आज के लिए हम एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे जहां पर एक रिलेशन को आप पहले इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करोगे अपने आप सारे स्टेप्स लिखकर, एंड देन आप इक्विवेलेंस क्लास भी निकालोगे. सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. ये करके दिखा दो मुझे तो आपको ये समझ आ गया है. डू दिस क्वेश्चन. Show that the relation R in the set Z of integers given by this 2 divides A minus B is an equivalence relation. पहले इसको इक्विवेलेंस प्रूव करो एंड देन यू फाइंड आउट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 and 1. फाइव मिनट्स का टाइम है, सब लोग करो.
सारे स्टेप्स लिखना, क्योंकि अभी मैं आपको आंसर दिखाऊंगी, एग्जैक्टली वही स्टेप्स लिखे होंगे तो मार्क्स मिलेंगे। और स्टेप्स भी नहीं, जिस तरीके से मैं उसको लिख कर दे रही हूँ एग्जैक्ट उसी फॉर्मेट में मुझे आप आंसर दोगे। मैं आपको हर क्वेश्चंस जो बोर्ड में मतलब चांसेस होते हैं 90 to 95%, उनका मैं आपको एक फॉर्मेट दूंगी, वो आप मुझे एग्जैक्टली वैसे ही प्रेजेंट करके दिखाओगे। जैसे ये हो गया LPP का क्वेश्चन हो गया, तो उसके लिए मैं मार्क्स काटूंगी आपके अब, सो दैट आप एग्जैक्टली अच्छे से प्रेजेंट करो और आपको उसमें फुल मार्क्स मिले, कहीं भी कटे नहीं। Ma'am, in this question we have to take the example. नो, यू डोंट हैव टू टेक द एग्जाम्पल। जब भी ये स्टेटमेंट में लिख कर आया है 2 डिवाइड्स a माइनस b और बोला है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, देखो जब भी बोला जाता है कि ये है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, हमेशा जनरल टर्म्स में प्रूव होगा। इफ इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव देन यू आर गोइंग टू गिव एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल सिर्फ तब देना है जब वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, अदरवाइज हमेशा जनरल टर्म्स में प्रूव करोगे आप। Okay, ma'am. डन, चेक करें। मैम 1 मिनट। ओके, यस श्रेयसी, आंसर करना है। Ma'am, I'm still solving, ma'am. ओके, Give me a minute. ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन क्लास 11th में किया है आप लोगों ने, है ना? मॉड के साथ भी मैंने कराया है और विदाउट मॉड भी। ओके, चलो अब देखते हैं हम इसका सोल्यूशन। क्योंकि बोला है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। सो फर्स्ट पार्ट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करोगे, एक एलिमेंट उठा लिया सेट से, तो रिलेशन था a माइनस बी शुड बी डिविजिबल बाय 2। तो a माइनस बी रिफ्लेक्सिव में हम a ही देखेंगे, तो a माइनस बी इज 0 एंड 0 इज डिविजिबल बाय 2, राइट? तो कोई भी एलिमेंट उठाएंगे सेट से तो 2 will always divide a minus a because it will always come out to be 0. So a belongs to R, for all a belongs to Z, R is a reflexive relation. ये आपको लिखना होगा ऐसे। देन सिमेट्रिक के लिए क्या किया आपने, पहले ए बी अपने आप ले लिया कि रिलेटेड है। अब अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, सो 2 डिवाइड्स ए माइनस बी,
तो अगर 2a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो b माइनस ए को भी तो डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ले रही हूँ, एग्जाम्पल नहीं देना होता है, ऐसे जनरल टर्म्स में ही लिखोगे। सो लेट्स से अगर a2 है और b4 है, तो a माइनस b इज गोइंग टू बी -2 एंड b माइनस a इज गोइंग टू बी 2। सो सिर्फ नेगेटिव का ही डिफरेंस आएगा, बट डिविजिबिलिटी तो होगी ना, और ये इंटीजर सेट से आ रहे हैं तो परफेक्टली फाइन है। सो 2 डिवाइड्स b माइनस a, तो ba बिलोंग्स टू r इज सिमेट्रिक, राइट? लिखा है सबने ऐसे? यस मैम। ओके, ट्रांजिटिविटी के लिए क्या करोगे, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी अपने आप लेट करेंगे पहले, देन 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, 2 डिवाइड्स बी माइनस सी बाय द डेफिनेशन। तो अब हमें चेक करना है कि ए सी को डिवाइड करे। अब देखो आप सीधा यहाँ पर नहीं लिख सकते दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस सी, क्योंकि ये उसको इम्प्लाई नहीं कर रहा है, इम्प्लीकेशन आनी चाहिए। तो a माइनस सी कैन बी रिटन एज सम ऑफ दीज टू, एंड क्योंकि ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, तो इनका सम भी डिविजिबल होगा। ये लॉजिक आपको यहाँ पर देना होगा। अगर ये मिस कर रहे हो और सीधा लिख रहे हो 2 डिवाइड्स ए माइनस सी, तो मार्क्स कटेंगे। तो इधर ये वाला इंपॉर्टेंट स्टेप है कि ये कैसे इंप्लाई करेगा दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस सी ऑल्सो। सो आपने यहाँ पर लिखा and then AC belongs to R, so R is transitive. तो यहाँ तक सबको आना चाहिए that R is an equivalence relation, ये आपने प्रूव कर दिया, राइट? अब आपसे पूछा था, यस यस Ma'am, I have written, ma'am, like I have done it like, ma'am, let x minus y be equal to a and ma'am y minus z be equal to b. So ma'am, then ma'am, x minus z, ma'am, it will be, so ma'am, x minus y by, sorry, x minus y by 2 be a, ma'am, like that. So ma'am, I have proved that x minus z is equal to 4a. Okay. ओके, वंशिका बोल रहा निष्ठा, a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2 लिखा है ना, तो इसको आप इंस्टेड ऑफ a और समथिंग लेने की जगह ना ट्वाइस 2 ऑफ m ले लो। Yes ma'am, ठीक like है, that only I हाँ written. ठीक है ठीक है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ऐसे लिख लो। तो फिर आप उसका सम दिखा रहे हो तो दैट इज फाइन, ठीक है, 2 कॉमन ले लो तो इट इज डिविजिबल, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके करेक्ट है। अब क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो, राइट? तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो का क्या मतलब है, एलिमेंट्स रिलेटेड टू जीरो। सो हु वांट्स टू आंसर दिस? एलिमेंट्स रिलेटेड टू जीरो, कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे रिलेटेड टू जीरो? टेल मी दिस, हम लोग ये डिस्कस करेंगे। कनिका, यू वांट टू आंसर या पहले से हैंड रेज्ड है? Yes, Anuvanshik. Sorry. Yes, Arushi. Ma'am, all the negative integers and sorry, ma'am, all the numbers that are integers that are divisible by 2. All the integers that are divisible by 2. So कौन कौन से integers divisible होंगे 2 से? Let's say मैं थोड़े से यहाँ पर लिख देती हूँ। ये हमारे पास integers का सेट है, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है? ये हमारे पास इंटीजर्स का सेट है। तो अब आप देखकर बता रहे हो एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू जीरो, आपने बोला ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू जीरो विल बी द सेट ऑफ, कौन सा होगा? Divisible integers divisible by 2. कौन कौन से होंगे डिविजिबल बाय 2 बताओ? Ma'am, -2, -4, 0, 2, 4. राइट, 0 भी होगा, 2, 4 Yes. एंड देन 6 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास सेट आएगा। अब ये कैसे आया, कुछ बच्चों ने अगर नहीं ऐसे सोच पाए कि कैसे निकालना है एलिमेंट्स रिलेटेड टू जीरो, तो बहुत सिंपल तरीका है। आप हमेशा अपना रिलेशन देखा करो कि कैसे डिफाइंड था। तो यहाँ रिलेशन देखो क्या है, 2 डिवाइड्स a माइनस बी, है ना, ये रिलेशन है। तो मैं बोल रही हूँ कि जीरो से रिलेटेड एलिमेंट लिखो, तो कोई भी a या b में से एक को जीरो प्लेस कर दो। अब क्या देखना है, 2 शुड डिवाइड 0 माइनस बी। तो 0 माइनस बी को 2 से डिविजिबल होने के लिए b की क्या क्या वैल्यूज होंगी, वही सेट मेरे पास आंसर हो जाएगा। तो अब अगर मैं सेट ऑफ इंटीजर्स की बात कर रही हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करती, लेट्स से अगर आप b को 1 ले लेते, तो 0 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, देखो इट इज नॉट डिविजिबल,
है ना, तो b cannot take value as 1. बट अगर 2 पुट करोगे तो -2/2 is -1 which is divisible. तो -2 can be put, 2 can be put, 0 - 0 is divisible, that can be put, -4 can be put, 4 and so on. सारे even integers हमारे पास यहाँ पर आंसर हो सकते हैं. So this set will be of all even integer where n belongs to z. Is this clear? Yes, ma'am. तो आपके पास सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 0 आ गया, सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स. अब ये वाला बताओ, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1. कोई ट्राई करो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1. ट्राई दिस इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1. जल्दी, टाइम हो गया है तो मैं आपको छोड़ दूंगी फिर. यस मानवी. मानवी. Ma'am, will it be the set of all odd integers? Okay, good. It will be the set of all integers 2n plus 1, n belongs to z. कैसे होगा? जब मैं 1 से रिलेटेड एलिमेंट देख रही हूँ तो a या b में किसी भी एक एलिमेंट को 1 रख दिया, तो लेट्स से a को ही 1 रख दिया, तो 1 b रिलेटेड तब होंगे जब 1 माइनस b विल बी डिविजिबल बाय 2. तो b की वैल्यूज देख रही हूँ, तो डिविजिबल कब होगा? जब ऊपर हमारे पास 0 हो या 2 हो, 4 हो, 6 हो, तभी डिविजिबिलिटी है. तो अब मैं b की वैल्यूज देखना स्टार्ट करूंगी. सो इफ यू सी b कैन बी 1. 1 minus 1 is 0 and it is divisible by 2. Then 2 put करने से क्या होगा? 1 minus 2 will become -1 which is not possible. तो b 2 नहीं हो सकता. 3 रखेंगे तो पॉसिबिलिटी है, 5 रखेंगे तो पॉसिबिलिटी है. 0 1 minus 0 नहीं हो सकता, तो 0 will not be a part of this set. Then -1, -3, -5 and so on. So this is how you can find the elements related to the 1 और 0. तो अब जब भी इक्विवेलेंस क्लास पूछी जाए किसी भी एलिमेंट की, जो भी रिलेशन डिफाइंड है, कोई भी एक एलिमेंट को रख दो एज दैट वैल्यू और फिर आप सॉल्व करके देख लो, आपको मिल जाएगा. सो दिस इज परफेक्टली करेक्ट जो आप लोगों ने आंसर बताया, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 and 1. So what we have done today is we have seen the types of relation. Types of relation आप रिवाइज करेंगे, यूनिवर्सल, एम्प्टी एंड आइडेंटिटी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. अगर ये तीनों होगा तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा. अगर एक रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तो उसकी इक्विवेलेंस क्लास पूछी जा सकती है. इक्विवेलेंस क्लास पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे कि किस एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है. फाइन. Okay, so we are